students. So the next topic is cloud reference architecture. Fine, let us proceed with this topic. So as per the book Mastering Cloud Computing, they have drawn this model. Basically, this Mr. Rajkumar Bhuiya has given this architecture named as reference architecture. So in this architecture, it has been shown that complete cloud stack has been divided into three layers: infrastructure as a service layer, platform as a service layer, and software as a service layer. Fine. Now, what do you mean by infrastructure? In the earlier lecture, like you have heard this term infrastructure in your lectures also. So I have mentioned that the infrastructure consists of various servers, networks, switches, wires, basically all those physical components which are essentially needed for a company to have so that they can the complete hardware requirement has to be there, so that on the top of them softwares can be installed. So all those physical hardwares, physical devices that could be related to storage, network, or anything, my computer machine, anything that is related to the infrastructure part only. Fine. So and the second is this is not infrastructure as service. This I have only explained you the meaning of the term infrastructure. Second is platform as a service. Platform, now let us define this term first. Platform means we should have some base operating system, some base software, so basically system softwares in place, which are running on the top of hardware, so that we can utilize the services of hardware. For example, you need to have an operating system for managing all those hardwares to get these hardware services. So operating system is one is an example of platform only. But other than operating system, there are some many other softwares also needed for software development. For example, if you're making a software we're using Java programming, then Java C compiler, this is a utility software, system software that will be used for compiling your Java programs, so that these programs can run on your machine. So this big again these softwares, it could be a compiler or a IDE or a databases, whatever the software we are using for the development purpose, these all are the part of platform only. This is not only operating system, all other softwares which are required for developing softwares. So fine. So these terms I'll explain later. Fine. Microsoft Azure provides one of the very good platform for coders, for developers. Hadoop is one of the software which is used to create a cluster. Cluster means where you can utilize the computational power of many machines which are working as a whole in a group, and which will work as a single machine. So when one system fails to execute some processing task, then the same task can be divided into a group of computers. All the computers are doing their role, and then all they are coordinating with each other, doing their subtasks allocated to them, and then finally at the end, one of the node which is called as master node or master computer will take the results from all the nodes and then provide the aggregate result. So this is how the Hadoop or cluster computing works, in which a huge task is divided into multiple subtasks. For example, let us say you have to calculate the sum of n numbers. Then let us say we are having two systems. Then the sum of n by 2 numbers will be done by one, and next n by 2 will be another system. Then they are doing now the operations will be done on a subset of numbers, not on the whole number. And then at the end of this, combine the result and show the output. So for cluster computing, where the basically the processing capability of multiple nodes, node mean a system, is utilized for doing some computationally extensive task. In such cases, these kind of distributed frameworks or these are used. So distributed means when we are making use of the distributed computing, means computational power of many computers which are working as a single core system. Google Application Engine is a service of Google, through which of course it provides a very good platform where you can select the which programming language libraries you want to use, which databases and all. So complete platform will be provided by this service, so that people can do coding and develop softwares. Anika is again one of the tool. Although Anika tool requires some physical infrastructure as well. So Anika is a normal tool, normal middleware. Hadoop is also a normal middleware tool. Middleware means that it's a tool only. It doesn't comes up with the infrastructure part.
However, these services, Windows, Azure, and Google Application Engine, because it is a very IT giant, Microsoft is an IT giant, Google is again IT giant. So they, if they are providing some tool or some platform related utility, these utilities are also supported with some sort of infrastructure as well. So by default, infrastructures will be given to run Azure or Google Application Engine. However, for Hadoop, like for Hadoop or the Anika, some additional platform will be required to run these software. So because Hadoop is developed by some other third-party software, then if Google is using Hadoop, then it is taking that Hadoop, they are purchasing Hadoop from that third party and then providing its own infrastructure to run Hadoop. Again, Anika is developed by Microsoft. Microsoft doesn't provide the infrastructure to run this Hadoop. So the if Google provides support of Anika, then Google will buy Anika tool, this middleware from Microsoft, and then provide the infrastructure to run this tool. And this is platform. So basically, platform is a runtime environment for developing the applications. Fine. Now like the topmost layer is software as a service layer. Software as a service means where all the applications will be used by the end users. Whatever the softwares are used, installed in the topmost layer of the cloud, these softwares, like for example, you are using Google Docs without installing the MS Office in your computer. You are just log into a Gmail, go to Google Docs, write documentation. So you are using the application of Google only, which is over the web, without without the need of installing that complete software in your system. You are using that software as an application over the web. So when the users are using the applications over the web without the headache of installing them in your own machine, this is called software. Fine. And in fact, you might have heard Facebook, Gmail, all these services are web services. So all these are part of software only, because you are not supposed to install Facebook framework to complete Facebook's the tools and technology programs required for running Facebook programs, because everything is running at the server side. You just need a Chrome, a client program, so a web browser, and to access those softwares. That's all. So all these softwares can be provisioned over the web without the need of installing them. Salesforce, CRM is very popular software, customer resource management. Nowadays companies are, instead of purchasing a complete CRM software to keep the monitor and keeping the data of the customer, they are nowadays they're subscribing to the CRM, which is out from this some cloud service provider. So the service provider is providing the facility, it is providing the complete platform and infrastructure, everything, installing the software. And this is a completely GUI based interface, and just customers or the organizations who are subscribing to CRM, taking these CRM from the cloud service provider, they just are using the CRM services, all the features over the internet, over the web. Fine. So now remember that in software service, the primary motive is to use the applications, and completely GUI based interface is provided to use the applications. In platform as service, those users will be interested, those who want to do the coding, basically those who want to develop software, those who don't want to install the compiler or databases or a front end, back end, what those complete operating system, the complete platform, they want to use the complete platform of the operating system for the development purpose. So for developing the application and deploying them onto the cloud. So basically these kind of services are required, platform service. So end users, those who want to use applications, plus the developers, coders, testers, those who are going to test the applications, they will be use this platform as service application. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, आपको जावा का प्रोजेक्ट बनाना है या फिर सी का, तो कोई भी आपने जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया, पाइथन सेलेक्ट किया तो पाइथन, तो जो इफ़ यू आर सेलेक्ट चोजन दैट कि आई डू द कोडिंग इन पाइथन ओनली, तो आप क्या करोगे, पाइथन के करस्पॉन्डिंग आप सॉफ्टवेयर ढूंढोगे कि क्या पाइथन के लिए कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए होता है. तो ऐसा एनाकोंडा 3 है, उसमें सारा पाइथन का फ्रेमवर्क आपको काफ़ी सारे मतलब बंडल ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर, बेसिकली एनाकोंडा 3 में पाइथन भी मिलता है, तो और मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स मिलते हैं. एनाकोंडा 3 जो सॉफ्टवेयर है उसको आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक IDE चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें आप कोडिंग करोगे. फ्रंट एंड टूल चाहिए होगा, एडिटर चाहिए होगा. तो एडिटर के लिए कई लोग पाइचार्म ले लेते हैं, और कुछ लोग एनाकोंडा का ही जो नॉर्मल उसका खुद का एडिटर है वो यूज़ करेंगे, बट कुछ लोग अलग से एडिटर यूज़ करते हैं. तो बेसिकली क्या है कि जो भी एनाकोंडा 3 जब इंस्टॉल होगा तो सारे सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होंगे, और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा, और क्योंकि वो हैवी सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारा उसमें बंडल देता है वो, काफ़ी लैंग्वेजेस का, लाइब्रेरीज़ का.
तो एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोवाइड द पाइथन कंपाइलर और फाइन, तो कंपाइलर जो भी हैं वो सारे वो देगा। कंपाइलर भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, जितने प्रोग्राम्स आप बनाओगे आपकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेडेक इन्वॉल्व है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर दी वेरियस वर्जन्स अवेलेबल एंड यू आर डाउनलोडिंग दोज वर्जन्स, looking for the versions and downloading those versions and doing installing those version in your laptop, then again doing setting and all. एंड इन फ्यूचर हो सकता है कि कभी कोई भी फाइल में किसी भी API में का कोई अपग्रेडेशन होता है तो आपको पूरा सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, या फिर कोई डिपेंडेंसीज आपको रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। सारे के सारे चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए सिस्टम में हमेशा। तो ये यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो कि ऑल दी थिंग्स शुड बी अप टू डेट है, ठीक है, अप टू डेट। तो ये सब हेडेक हमारा है। हमें अपना रिसोर्स भी देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपना रिसोर्स भी आप लगा रहे हो उस प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करने के लिए। फिर आप प्लेटफॉर्म वो जो सॉफ्टवेयर टूल्स रन टाइम एनवायरनमेंट है खुद सेटअप कर रहे हो, उसके बाद आप कोडिंग कर रहे हो, जो टाइम टू टाइम आप सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस देख रहे हो, उसको खरीद रहे हो, और उसका सारा काम आपका हेडेक। लेकिन अगर आप ये हेडेक इफ आई लाइक इट से आई डोंट वांट टू आई वांट टू सेव माय टाइम, आई डोंट वांट टू डू दिस लाइक सर्चिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, डाउनलोडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, and sometimes you might have faced this thing that we are browsing in the internet and we are clicking on so many links and not all links provide the correct software, तो वहाँ पे भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। कई बार वायरस आ जाता है गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के चक्कर में, कोई अनट्रस्टेड साइट पर चले गए, डबल क्लिक कर दिया और डाउनलोड होनी शुरू हो गई। वो डाउनलोडिंग तो हुआ लेकिन वो मालवेयर डाउनलोड हुआ, क्योंकि आप ऑथेंटिकेटेड साइट पर ही नहीं गए थे। तो जब भी कोई डाउनलोड करते हैं तो यूजुअली हमको वहीं से डाउनलोड करना चाहिए, जो कि जिसने वो डेवलपर जो होगा, क्योंकि वो ट्रायल वर्जन तो देगा ही उन सॉफ्टवेयर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हेडेक और टाइम भी लग रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, मेंटेनेंस और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, टाइम एफर्ट्स लगेंगे, तो काफ़ी चीज़ें। बट अगर आप ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप क्लाउड से लेते हो तो क्या होगा, यू जस्ट हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन इन विद द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल एक उसका प्रोसीजर होगा, उसको आपको फॉलो करना है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रिक्वायरिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एज वेल। Even if it is a free trial, they are asking you to submit the details, so that ki once the free trial completes, then they'll automatically detect the charges from your debit card, credit card, if you the access you are working using the limit beyond limit. सो यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, दिस इज़ अ प्राइम रिक्वायरमेंट। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, यू हैव अकाउंट इन द क्लाउड, देन यू कैन यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड वेंडर। तो जैसे फॉर एग्जांपल AWS में भी क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज होती हैं, जैसे इलास्टिक बीनस्टॉक हो गया। गूगल में आपका अभी नेट पे कभी सर्च करना गूगल एप्लीकेशन इंजन, तो गूगल एप्लीकेशन इंजन भी एक प्लेटफॉर्म सर्विस है। तो उसका जो पोर्टल खुलेगा उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत ईजी है, मेन्यूज़ हैं, उसमें सब लिखा होगा ऑलरेडी कि विच लैंग्वेज यू वांट टू चूज़, क्या लैंग्वेज चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, लिनक्स पे करना है, किस पे करना है। अगर सी का प्रोग्राम तो सी लाइब्रेरीज है, .NET पे .NET फ्रेमवर्क आप चूज़ करोगे, एंड्रॉयड का प्रोग्राम एंड्रॉयड कंपाइलर यूज़ करोगे। तो जो भी आपके डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, यू कैन सेलेक्ट द टूल्स एंड यूटिलिटीज, रन टाइम फ्रेमवर्क्स रिक्वायर्ड। सेलेक्ट करने के बाद तो पूरा सेटअप करके आपका तो सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर ही ऑटोमेटिक प्रोग्राम वहाँ बनाए गए हैं, वो करके दे रहे हैं आपको। तो पूरा जो बैकएंड पे काम चल रहा है वो सेटअप ऑलरेडी हो रहा है, और वो सेटअप मतलब वो जो भी वर्जन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड हैं इसमें, आपको इंस्टॉल नहीं करना बेसिकली, उसमें सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। आपको सेलेक्ट करना है बेसिकली कि कौन सा चीज़ यूज़ करना है। यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टॉल कर रहे हो उसको, वो सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं, अप टू डेटेड पैकेजेस हैं, आपको सेलेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी आप कोडिंग करोगे तो वो उस कंपाइलर को इन्वोक करेगा एट द सेम टाइम जब भी आप कोई API यूज़ करोगे बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन। तो ये सब बहुत मतलब ईजी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पहले से ही है। तो एक हेडेक खत्म हो गया, कॉस्ट खरीदना नहीं पड़ रहा है सॉफ्टवेयर आपको। तो थोड़ा बहुत जो चार्जेस देने पड़ रहे हैं आपको सब्सक्रिप्शन के देने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि फ्री ट्रायल है या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन है या मंथली प्लान है, 3 years का प्लान है, कैसा भी प्लान है आपका। तो अब जो कॉस्ट होती है फिर प्रोवाइडर का डिपेंड करता है कि हर प्रोवाइडर की कॉस्ट डिफरेंट वेरी कर सकती है सर्विस यूसेज की, वो देखना कंपेयर करना पड़ेगा प्लान, उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैक्सिमम केसेस में नॉमिनल चार्जेस ही हैं, अगर सिंपल नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी वेब सर्विस बना रहे हो, बहुत हाई एंड एप्लीकेशंस बना रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, CPU ज़्यादा चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए काफ़ी, तो वहाँ पे थोड़ा उसके हिसाब से फिर बिलिंग आपकी जनरेट होगी बेस्ड ऑन योर यूसेज ओनली, ठीक है। सो दिस इज़ प्लेटफॉर्म। नाउ
when we want to develop something and we want to deploy in the cloud. तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार डेवलप कर देना, फिर उसको होस्ट करवाना क्लाउड में ही सारी सर्विसेज को, तो एक आईपी एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद यूज़र क्या कर सकता है, एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। तो जब एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट भी करा दिया है, क्योंकि हम एक सर्वर तो चाहिए ही होगा ना, बिना सर्वर के कैसे आप अपने पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को होस्ट कराओगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। अब इसके बाद क्या है कि लेट अस से योर बिजनेस यू वांट कस्टमर्स टू यूटिलाइज योर वेब सर्विस, यूज टू योर वेब सर्विस। जितना वो वेब सर्विस आपकी यूज़ करेंगे उतना आपका ट्रैफिक जितना हिट होगा, जितना अच्छा, उतना आपको बेनिफिट होगा फाइनेंशियल। तो यहाँ पे आपको यूजर्स जो हैं, ऑल द यूजर्स थ्रू अ वेब इंटरफेस कैन इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर्स विच हैव बीन डिप्लॉयड इन फॉर्म ऑफ जीयूआई इंटरफेसेस। अब यहाँ पे पूरा उनको फ्रंट एंड दिखेगा, जीयूआई इंटरफेस दिखेगा, उनको नॉर्मल उनको उसको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, गूगल डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, जीमेल सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो आप सॉफ्टवेयर एज सर्विस यूज़ कर रहे हो ओवर द वेब। ठीक है, वेब 2.0 क्या एक वर्जन है वेब का बेसिकली। अब तो काफ़ी अच्छे वर्जन हैं, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, तो काफ़ी फीचर्स आज के टाइम पे वेब में ऐड होते रहते हैं। ऐसे बहुत पहले जब वेब 1.0 वर्जन था तो उस समय इतना इंटरेक्शन नहीं था क्लाइंट्स का वेब के साथ। 2.0 ऑनवर्ड्स क्या हो गया ना, वेब इज इंटरेक्टिंग विद अस, सो हम वी आर गिविंग सम इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली, तो इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, डायनामिक इंटरेक्शन हो गया। तो ये जो इंटरफेस है वेब इंटरफेस, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हैं कस्टमर सर्विसेज को और उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर, फाइन। मेजर रोल इसमें सर्विस यूसेज का ही रहता है, एंड द हेडेक ऑफ इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर फॉर द यूसेज पर्पज इज नॉट देयर नाउ, कम्प्लीटली रिमूव्ड, ओवरहेड हट गया। तो आप ये जैसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, लेटेस्ट से आपको जीमेल सर्विस यूज़ करनी है, आप जीमेल में रजिस्ट्रेशन करोगे और जीमेल सर्विस यूज़ करोगे, और जीमेल बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 10 या 15 GB जो भी 15 GB पे करेगा अगर फ्री ट्रायल में। तो फ्री ट्रायल में अगर आप 15 GB का आपका डेटा फिल हो गया है मेल से या फिर फाइल्स आपने इंस्टॉल करी हैं जीमेल अकाउंट में, गूगल ड्राइव आपकी भर चुकी है 15 GB, तो उसके बियॉन्ड वो आपसे चार्ज लेना शुरू कर देगा कि अब नाउ द लिमिट इज़ एक्सीडेड, नाउ पे फॉर द दिस प्लान। ठीक है, नहीं हुआ है तो आप डिलीट करते जाओ उसको, डेटा डिलीट करते जाओ, फ्री करते रहो स्पेस को, जंक मेल हटा दो, ट्रैश में डालो, ट्रैश से भी डिलीट कर दो, अनवांटेड मेल्स को अनसब्सक्राइब करो। तो ऐसे करके हम लोग वैसे ही यूज़ करते जाते हैं। बट अगर इन केस वो बिल्कुल कम्प्लीटली फुल हो गया है तो आपको इनफैक्ट इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए भी हमें पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री ट्रायल या फ्री में मिलेगा, ओवर सर्टेन लिमिट वी हैव टू पे फॉर यूजिंग देम। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। सॉफ्टवेयर सर्विस में कस्टमर्स क्या है बेसिकली आपके एंड यूजर जो वांट यूज सॉफ्टवेयर। प्लेटफॉर्म सर्विस में कस्टमर्स कौन से आपके बेसिकली डेवलपर्स, कोडर्स, टेस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि सारा कॉन्फ़िगरेशन ये लोग करेंगे। मतलब सिर्फ कोडिंग का डेवलपिंग जो टीम होगी उसमें बहुत सारे लोग होंगे, डेवलपर्स भी होंगे, कोडर्स जो कोडिंग का काम करेंगे, डिज़ाइनर्स भी, पीपल आर आल्सो देयर जो लोग टेस्ट करेंगे मॉड्यूल्स को, टेस्टर्स भी होंगे। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, उसको कॉन्फ़िगर करेगा उस पर वेब में, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स उसे बहुत सारे इसके यूजर्स हो सकते हैं जो कि पूरा पार्ट है, डेवलपमेंट टीम के पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्योंकि फिजिकल हार्डवेयर और इन सब से मिलके बना हुआ है तो इसको रेफर कर रहा है। इसका बेसिकली ओनर कौन हो सकता है, हु आर द व्हाट टाइप ऑफ पीपल कैन लुक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जांपल I don't want to use a service or software over the web. I don't want to develop a platform over the web. ठीक है, I just require initially I want some infrastructure so that I can run my business, and I want that complete infrastructure I want that I should have a full control onto that infrastructure. full control का मतलब क्या होता है कि आपको दिखे कि भाई मेरे पास इतने सर्वर्स हैं, इनकी ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनका ये मतलब पूरा CPUs क्या है, रैम कितनी है, रैम साइज़ की, हार्ड डिस्क कितनी है, पूरा का पूरा। से हम लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारा फुल कंट्रोल होता है लैपटॉप में, हम सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं लैपटॉप की। सिमिलरली आप चाह रहे हो कि मेरे पास एक पूरी मुझे मशीन चाहिए, पूरा सर्वर चाहिए, मैं उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन देख पाऊँ, उसको मेरा पूरा कंट्रोल हो सर्वर पर। तो उसके लिए क्या है कि जब को हाई एंड प्रिविलेजेस चाहिए तो और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आप चाहते हो कि मैं अब मेरा ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मैं चाहूँ जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ, जो भी करूँ, मेरा ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, मुझे ये प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट नहीं करना है, इसके खुद के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने। आप चाह रहे हो मुझे भाई तुम सब मशीन्स दे दो, हार्डवेयर दे दो, नेटवर्क दे दो, मैं उसके बाद मेरे पे छोड़ दो, मुझे क्या करना है।
जो तो आप कौन सा वर्जन डालना है, कौन सा डाउनलोड करना है, क्या नहीं करना है, वो सब सेकेंडरी है। वो आपके मतलब आप यू वांट दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि मुझे बस मशीन चाहिए, सर्वर चाहिए, नेटवर्क, मतलब मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेसिकली। और उसके बाद का जो भी काम होगा, चाहे मैं उसमें कोडिंग करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, वेब सर्विस होस्ट करूँ, कुछ भी करूँ, वो मेरा सेकेंडरी काम है, वो मैं खुद करूँगा। ठीक है, तो इन दैट केस इफ़ यू आर मेनली इंटरेस्टेड इन हैविंग वर्चुअल मशीन, सर्वर्स, डेटाबेसेस, व्हाटएवर, लोड बैलेंस, ऑल द पार्ट ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, switches, जो भी चाहिए आपको, you can you are a small enterprise company or a startup guy, then you can look for take the infrastructure from the cloud. Now some of the people, even after taking the infrastructure, they also take the some of the platform as services also, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि आपका सारा हेडेक आपके पास आ चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर कुछ बिल्ट इन सर्विसेज हमें चाहिए प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, हम नहीं चाह रहे कि मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल इंस्टॉल करूँ, ये करूँ, तो फिर आपको यही सर्विस भी लेनी पड़ेगी अगर आप बिल्ट इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, अब एक बार आपका पूरा का पूरा आपने क्या किया, प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप किए, आपके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट हो चुके हैं और आपका पूरा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पूरा कंट्रोल आपका, क्योंकि आपने खरीद लिया है। मतलब द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज योर नाउ, आई मीन यू हैव द कंट्रोल ऑन दैट infrastructure, not the complete cloud, basically only a small part of that. If let us say if you have taken only 4 virtual machines of 32 GB RAM, then you have a control over 32 GB, that only those virtual machines only, उनका IP configuration, उनका ये सब कुछ, उनका नेटवर्क, ये सब कुछ, ये सारा कंट्रोल, उनके IDS मतलब IP फॉरवर्डिंग रूल्स, उनके फायरवॉल क्या लगानी, सिक्योरिटी रूल क्या इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, पूरा वो सारा का क्या, कौन सी प्रिविलेजेस देनी है आपको, कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक करना है, वो सारा कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर का उस पोर्शन के लिए आपको दे दिया गया है। अब इसके बाद आप उसके ऊपर प्लेटफॉर्म एज सर्विस यूज़ करके कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आपने किया ये सर्विस यूज़ की, डेवलप किया, उसके बाद आप उसको होस्ट करा दो अपने प्लेटफॉर्म में, और जो IP एड्रेस और जो भी URL आपका बन के आएगा, या तो खरीद लो नया डोमेन, AWS ऑल्सो प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, या फिर जो बाय डिफॉल्ट डोमेन मिल रहा है या बाय डिफॉल्ट IP मिल रहा है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी जो वेब सर्विस आप होस्ट कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म में, वो आप एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस उसको एज अ सर्विस वेब में यूज़ करके अपने खुद के कस्टमर्स बना सकते हो, क्योंकि आपका तो एक बिजनेस है, आपको तो कस्टमर्स चाहिए ज़्यादा। अब कस्टमर्स क्या करेंगे, इस सर्विस के थ्रू आपका जो भी सर्विस आपने प्रोविजन किया एज अ सर्विस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, उसमें आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई वेब सर्विस डेवलप की, उसके बाद उसको होस्ट डिप्लॉय करा दिया। आप क्या कर सकते हो, उस वेब सर्विस को आप एज अ सर्विस लोगों को दे सकते हो यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी सर्विसेज जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारी वेब सर्विसेज हम एंटरप्राइजेज बनाती हैं और वो उसको क्लाउड में होस्ट कर देती हैं और एज अ सर्विस वो दे रही हैं लोगों को। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी दैट कि ऑल द सॉफ्टवेयर सर्विस थिंग्स दे विल बी प्रोविजनड, दे विल बी ओन्ड बाय द क्लाउड से प्रोवाइडर ओनली। इसमें बहुत सारी सर्विसेज होंगी जो प्रोवाइडर ही ओन करता है, जैसे गूगल डॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, अगर गूगल की हम बात कर रहे हैं, गूगल फॉर्म्स हो गया। लेकिन गूगल में ऐसे भी और सारी काफ़ी सारी वेब सर्विसेज चल रही होंगी, गूगल का सर्वर काफ़ी सारी और भी वेब सर्विसेज को चला रहा होगा जो उसको बिलोंग नहीं करती है, किसी दूसरे थर्ड पार्टी, किसी दूसरी कंपनी को बिलोंग करती है, और उन्होंने गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हुआ उनको होस्ट करने के लिए। तो वो जो वट एवर द वेब सर्विस इज प्रोविजन एज अ सर्विस ओवर द वेब, वो उसको हम क्या बोले, सॉफ्टवेयर सर्विस जो लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसे फेसबुक ही है, फेसबुक का जो बैकएंड पे सर्वर्स चल रहे हैं, उन्होंने क्लाउड का ही बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे वो, तो है तो मतलब वो वेब सर्विस तो फेसबुक को बिलोंग करती है, बट हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेटा कहीं क्लाउड में ही सेव कर रहे होंगे। जैसे यूट्यूब है, वो भी क्लाउड का सर्वर यूज़ कर रहा होगा। आपका ड्रॉपबॉक्स है, ड्रॉपबॉक्स एक सर्विस आपके थ्रू आप गूगल में क्या करते हो, उस सर्विस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हो। तो ड्रॉपबॉक्स क्या करता है, आपका अमेजन की जो स्टोरेज एज ए सर्विस होती है, S3 सर्विस होती है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 होती है स्टोरेज सर्विस डेटा सेव करने के लिए। तो ड्रॉपबॉक्स एज एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है डेटा को सेव करने के लिए, लेकिन बैकएंड पे वो किसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, ड्रॉपबॉक्स अमेजन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, और उसके S3 सर्विस को यूज़ करके वो डेटा सेव करवा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे काम चल रहा है वो फ्रंट एंड का हमें पता नहीं चलेगा कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, हमें तो सिर्फ GUI दिख रहा है और हमारा काम चल रहा है। एक्चुअल में बैक एंड में किसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, किसके स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, किसका नेटवर्क पे हो रहा है काम, कौन से डेटा सेंटर में डेटा जा रहा है, वो सब हमारे लिए क्या हिडन है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम अस। तो जितने टॉप लेयर पे हम होते हैं उतनी चीज़ें हमसे एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जितने नीचे हम जाते जाएंगे काफ़ी कंट्रोल हमारा बढ़ते जाएगा इन चीज़ों पर। ठीक है, दिस इज़ द वेरी आई मीन not a very in depth, but yeah, this is a general idea about the cloud reference architecture, what is cloud reference architecture and all. So in the next topic I'll be talking about individual
basically services individually again, and we'll see some of the examples of cloud service providers as well to go in deep. Fine. I hope that you got this lecture. And yes, and some of the people also this, because this diagram is written in form of the architecture. सबसे पहले लोवेस्ट लेयर में क्या दिखाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें हार्डवेयर चाहिए होता है. उसके ऊपर दिखाया गया प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मतलब एक हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ चाहिए होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर. और उसके बाद दिखाया गया कि हाँ एप्लीकेशंस, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर सर्विस है वो सब टॉप में आती है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो ये आर्किटेक्ट, इसलिए इसको आर्किटेक्चर बोल रहे हैं. इट basically how the design modules have been formed and how they are organized in a complete stack. ठीक है. और अदरवाइज अगर क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाट आर द सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड, तो भी आपको यही आंसर समझाना है. देयर आर 3 सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड: सॉफ्टवेयर सर्विस, प्लेटफॉर्म सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस. दीज आर की सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड. ठीक है. जो मेन 3 सर्विस मॉडल्स हैं, दीज आर द 3 सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड. अब इसी को अगर आप एक डायग्राम के फॉर्म में स्टैक वाइज दिखाओगे तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्लाउड का रेफरेंस आर्किटेक्चर है. चलिए, ओके, थैंक यू.